پاکستان نے امریکہ ایران حالیہ کشیدگی پر فریقین سے تحمل کی اپیل کر دی۔ مفاہمتی یادداشت میں کیے گئے وعدوں کی پاسداری کرنے پر زور۔ اسلام آباد MOU میں مفاہمت، باہمی وقار اور خطے کی خوشحالی کی ضمانت دی گئی ہے۔ فریقین ایسے کسی بھی عمل سے گریز کریں جس سے امن و استحکام کی کوششوں کو نقصان ہو۔ ترجمان دفتر خارجہ کا بیان۔ We hit him very hard last night. Very, very hard. Probably hit him hard again tonight. I'll give him a little warning. We're going to hit him hard tonight. Our deal is a wall to a nuclear weapon. His deal was a road to a nuclear weapon. They'll never build a nuclear weapon under our deal. But I don't know if we're going to have a deal. We may just do it without a deal. Because you know what? It's easier. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایران ڈیل ختم کرنے اور تباہ کن حملوں کی دھمکی، بحری ناکہ بندی دوبارہ شروع کرنے اور ایرانی تیل کے صنعتی ہب خارگ جزیرے پر قبضے کا اشارہ دے دیا۔ نیٹو سمٹ سے قبل نیوز کانفرنس میں کہا کہ ان کے خیال میں جنگ بندی ڈیل ختم ہو چکی۔ وہ مذاکرات کاروں سے کہیں گے کہ بات چیت جاری رکھنا ان کی مرضی ہوگی۔ ایران کے لوگ ایماندار نہیں، جہازوں پر حملے کر کے مفاہمتی میمورینڈم کے خلاف ورزی کی گئی ہے۔ ایرانی مذاکرات کاروں نے خامنہئی کی تدفین کے دوران حملے نہ کرنے کی اپیل کی ہے۔ واپس جا کر میزائل اور ڈرون حملے کر دیے۔ ایرانی وعدہ خلاف کرنے والے لوگ ہیں۔ حملوں کا مطلب ایران سے مکمل جنگ شروع کرنا نہیں، صدر ٹرمپ کا تازہ بیان۔ امریکی صدر نے نیٹو سمٹ سے قبل ایران ڈیل ختم ہونے کی بات کی۔ سمٹ کے دوران ڈیل توڑنے کا کوئی ذکر نہ کیا۔ کانفرنس کے بعد یوکرینی صدر کے ہمراہ نیوز کانفرنس میں ایران پر نئے حملوں کی دھمکی دی۔ جنگ بندی ڈیل ختم ہونے کے بیان کی وضاحت کے سوال کا براہ راست جواب نہ دیا۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹس۔ امریکیوں آ جاؤ، ایران تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کمیشن کے ترجمان ابراہیم رضائی کا صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکیوں پر رد عمل، خبردار کیا کہ ایران میں داخل ہونے والا ایک بھی امریکی زندہ واپس نہیں جا سکے گا۔ بدتمیزی کا جواب بدتمیزی سے نہیں، عملی اقدامات سے دیتے ہیں۔ ایران کی مہذب اور بہادر قوم سے توہین آمائے زبان میں خطاب کرنے سے اس کی عظمت کم نہیں ہوتی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا ایکس پر پیغام۔ ایران نے آبِ ہرمز کے انتظام سے متعلق MOU کی شق 5 یاد دلا دی۔ معاہدے کے مطابق سمندری گزرگاہ کا انتظام سنبھالنا ایران کی ذمہ داری قرار دی گئی۔ امریکی حملے جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی ہیں، اسماعیل بقائی کا ایکس پیغام۔ آبِ ہرمز کے قریب ایرانی بندرگاہ پر امریکی حملے کے بعد تباہی کے فوٹیج منظر عام پر آ گئی۔ ایران کے اطراف خلیج میں امریکہ کے 20 جنگی جہازوں کا گشت، بحری بیڑوں پر درجنوں جنگی طیارے فعال۔ سینٹ کام نے تازہ فوٹیج جاری کر دی۔ ایران نے گزشتہ رات امریکی حملے میں 8 فوجیوں کی شہادت کی تصدیق کر دی۔ امریکہ اور ایران کے ایک دوسرے کی فوجی تنصیبات پر حملے۔ امریکہ کا فضائی دفاعی نظام، ساحلی ریڈار تنصیبات، اینٹی شپ میزائل کی صلاحیتوں سمیت 80 اہداف کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ سرخ میں 6 میزائل گرے۔ جزیرہ خارگ، کشم اور بندر عباس میں دھماکے سنے گئے۔ بندرگاہ پر تجارتی اور ماہی گیری کے مقامات کو ہدف بنایا گیا۔ کئی افراد زخمی ہو گئے۔ ماہی گیروں کی کئی کشتیاں جل گئیں۔ پاس دوران انقلاب کا میزائل اور ڈرون آپریشن کے ذریعے 85 اہم امریکی فوجی تنصیبات کو ٹارگٹ کرنے کا دعویٰ۔ ایرانی پاس دوران انقلاب نے جنوبی علاقے میں امریکی MQ-9 ڈرون مار گرایا۔ ایرانی فوج نے بحرین میں موجود امریکن 5th فلیٹ اور کویت میں علی السالم ایئر بیس کو ٹارگٹ کیا۔ بحرین اور کویت میں فضائی حملوں کے باعث سائرنز بج اٹھے۔ ایران کے خاتم الانبیاء سینٹرل ہیڈ کوارٹرز نے امریکی حملوں کو کھلی جارحیت قرار دے دیا۔ امریکی حملوں کا منہ توڑ جواب دینے کا اعلان۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر کالباف نے ایکس پر جاری بیان میں کہا کہ دھونس، دھمکی اور بلیک میلنگ کا دور ختم ہو گیا۔ اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ ایران کسی دباؤ کے سامنے جھکنے والا نہیں۔
अमरीका ने ईरान के तेल बेचने पर फिर से पाबंदी आयद कर दी। मुफाहमती याददाश्त के बाद अमरीका ने 21 अगस्त तक ईरान को तेल बेचने की इजाजत दी थी। अब अमरीकी महकमा खजाना ने इस मुद्दत को कम करके 17 जुलाई तक महदूद कर दिया। अमरीका का दावा यह है कि नई पाबंदियां आबनाए होर्मुज में हमले के सबब लगाई गईं। अमेरिका को आपने हुर्मस में नई ईरानी पोजीशन माननी होगी। ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीजी ने वाज़ेह कर दिया, ईरान के खिलाफ अमरीकी इक़दामात के बाद सूरत हाल बदल चुकी। नजफ में हजरत अली के रोज़े मुबारक पर शहीद आयतुल्लाह खामनाई की नमाज जनाजा अदा, जुलूस जनाजा में लाखों अफराद की शिरकत, हद निगाह सोगवारान का रैला नजर आया। शुरका सुप्रीम लीडर से अकीदत का इजहार करते हुए रोज़ा मुबारक तक जा पहुंचे। जसद खाकी नजफ के बाद करबला ले जाया जाएगा। इसराइल के गजा पर वहशियाना हमलों का सिलसिला जारी। अल मवासी कैंप में बेघर अफराद के एक खैमे पर मिसाइल हमला करके बच्चे समेत 4 अफराद को शहीद कर दिया। गजा सिटी में स्कूल के करीब 2 फिजाई हमलों में एक शख्स जाँ बहक, 12 अफराद जख्मी। जैतून के इलाके में इसराइली फौजियों की फायरिंग से 6 साला बच्चा जान से गया। गजा के दीगर हिस्सों में भी हमलों से 3 फलस्तीनी लुक़्मा-ए अजल बन गए। फील्ड मार्शल का सरहद पार से दहशतगर्दी को रियासत की पूरी ताकत से कुचलने का ऐलान। दुश्मन एजेंसीज की सरपरस्ती में काम करने वाले प्रॉक्सी अनासर की तमाम काविशें नाकाम होंगी। मुसल्लह फौज कौम की हिमायत के साथ उन प्रॉक्सी अनासर के ठिकानों का खात्मा यकीनी बनाएगी। मुसल्लह फौज कौम की मुकम्मल हिमायत के साथ दहशतगर्दों के सहूलतकारों का मुकम्मल खात्मा करेंगे। प्रॉक्सी अनासर को पाकिस्तान की आमन और खुशहाली को नुकसानात पहुँचाने की हरगिज़ इजाज़त नहीं देंगे। जंगें बयानबाजी या सियासी नारों से नहीं, ईमान, इत्तेहाद और नज़्म-ओ-ज़ब्त से जीती जाती हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में खिताब। मुसल्लह फौज की सलाहियतों, बुलंद हौसले और ऑपरेशनल तैयारी पर एतमाद का इजहार। मैंने आपको बड़े ऑपरेशंस बताए, इनमें 4 सिविलियन पहले और बाद में पुलिस के हमारे जवान, फ़ौज के जवान, तो टोटल हमारी जो शहादतें हैं वो 42 कीमती जानें इस मुल्क अल्लाह ताला को उन्होंने अपनी जानें सुपुर्द की हैं, अपने मुल्क का हिफाजत करते हुए, बहादुरी के साथ लड़ते हुए। 54 दहशतगर्द जो से हैं जो हमारे पास कन्फर्म्ड हैं, डेड बॉडीज जो कि जहन्नम हासिल हुई। बलूचिस्तान में 4 रोज के दौरान झड़पों और ऑपरेशंस में 54 दहशतगर्द मारे गए। JOC समेत सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस के 42 जवान शहीद। जियारत में शहीद होने वाले तमाम पुलिस एहलकार मकामी थे। हन्ना उड़क के वाक़ये में 4 अफराद जाँ बहक हुए। मांगी डैम वाक़ये में 9 पुलिस एहलकार शहीद, 15 खारजी हलाक हुए। सिर्फ आज ही खारान और दालबंदीन में 14 दहशतगर्दों को अंजाम तक पहुँचाया गया। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की ब्रीफिंग। कहा, बलूचिस्तान में भारत दहशतगर्दी करवा रहा है। भारतीय सरजमीन दहशतगर्दी में इस्तेमाल हो रही है। कोई माई का लाल पाकिस्तान को खौफजदा नहीं कर सकता। तर्जुमान पाक फौज की ब्रीफिंग। ये करवा रहा है हिंदुस्तान, ये करवा रहा है वो कुव्वतें, वो एनिमी कुव्वतें हिंदुस्तान के साथ जिनको पाकिस्तान की इज्जत, पाकिस्तान की खुशहाली और स्टेबिलिटी बर्दाश्त नहीं होती। एंड दे आर यूजिंग द टेरिटरीज अंडर द कंट्रोल ऑफ दिस इलिजिटिमेट अफगान तालिबान रजीम। मुल्क दुश्मन अनासिर को पाकिस्तान की कामयाबी बर्दाश्त नहीं। ज्यादातर हलाक दहशतगर्दों का ताल्लुक अफगानिस्तान से होता है। कराची में हमला हुआ, 4 हमलावरों में से 3 अफगान थे। कराची हमले की सारी प्लानिंग अफगानिस्तान में हुई। अफगान तालिबान रजीम दहशतगर्दों में पावर फराहम कर रही है। उनको पाकिस्तान की तरक्की और इज्जत से मसला है। बलूचिस्तान पाकिस्तान की जान और शान है। बलूचिस्तान की खुशहाली एक हकीकत है जिसे कोई बदल नहीं सकता। दहशतगर्दी के मामले पर फील्ड मार्शल और हुकूमत का मौक़िफ़ बहुत वाज़ेह है। दहशतगर्दों का हर जगह ताक़ुब किया जाएगा। DGISPR ने वाज़ेह कर दिया।
भारत से मुंसलिक गैंग्स अमेरिका और यूरोप में जराइम में मुलव्विस निकले। अमेरिकी महकमा इंसाफ ने भारतीय गैंग्स के टारगेट किलिंग और मनशियात फरोशी में मुलव्विस होने की तस्दीक कर दी। ऑपरेशन हार्ड बॉल के तहत भारतीय गैंग्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। 37 मुलजिमान पर भत्ताखोरी, असलहा, मनशियात और कत्ल के मुकदमा कायम। बुखार अरब में लापता होने वाले कार्गो तैयारे का मलबा मिल गया। मलबा और माड़ा के साहिल से 53 नॉटिकल मील जनूब से मिला है। पाक बहरिया और PMSA ने 12 घंटे की मुसलसल कोशिशों से मलबा तलाश किया। अमले के 5 अरकान की तलाश के लिए रेस्क्यू कार्रवाइयां जारी। शारजा से कराची आने वाला निजी कंपनी का कार्गो तैयारा गुज़श्ता रोज रेडार से गायब होकर लापता हो गया था। मुतासरा खानदानों के घरों पर ताज़ियत करने वालों का तांता बन गया। कराची जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर K2 एयरवेज के 4 दफातर सील करने के बाद ब्यूरो ऑफ एयर सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन के सुपुर्द। तहकीकाती टीम तैयारे के ऑपरेशनल रिकॉर्ड, मेंटेनेंस लॉग्स, फ्लाइट प्लान, अमले की तफसीलात और दीगर दस्तावेजात का जायजा लेगी। कराची के इलाके ली मार्केट में 6 साला बच्चे का लर्ज़ाखेज कत्ल। वली की बोरी बंद लाश मिली। लाश को मस करके बिल्डिंग के नीचे फेंका गया। कमसिन वली को घर के बाहर से पीर की शाम अगवा किया गया था। पुलिस ने कत्ल के इल्जाम में पड़ोसी को गिरफ्तार किया। नन्हे वली की नमाज जनाजा ली मार्केट के करीब मस्जिद में अदा कर दी गई। अहले खाना और इलाका मकीनों की बड़ी तादाद में शिरकत। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को कमसिन बच्चे के कत्ल की रिपोर्ट पेश। हुक्काम को मुतासरा खानदान से मुकम्मल ताउन की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का पास करदा पार्लियामेंटेरियंस प्रिविलेजेस बिल शदीद तनकीद की जद में। तलाल चौधरी का बिल पर हैरत का इजहार। कहा, पहले किसी भी असेंबली ने ऐसी कानून साजी नहीं की। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली ने बिल लामहदूद इख्तियार और अरकान असेंबली को कत्ल का लाइसेंस देने के मुतरादिफ करार दे दिया। कहा, ब्लू पासपोर्ट की सिफारिश का मकसद अरकान को मुल्क से फरार और सियासी पनाह के हुसूल में मदद देना है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने KP हुकूमत के बिल पर सवाल उठा दिया। PTI चेयरमैन बताएं कि इस बिल से आवाम को कितनी सहूलियात मिलेंगी। फैसल करीम का सवाल। बैरिस्टर गौहर की बिल पर नजरसानी की यकीन दहानी। कोई ऐसी चीज नहीं करेंगे जो मंशूर के खिलाफ हो। चेयरमैन PTI की गुफ्तगू। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी का मुतनाज़ा शिकों पर नजरसानी का फैसला। स्पीकर को तमाम जमातों के पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास बुलाने की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म के ज़ेर सदारत गिलगित बल्तिस्तान के लिए 100 मेगावाट शमसी तवानाई मंसूबे पर जायजा इजलास। पावर डिवीजन को मंसूबा बर वक्त मुकम्मल करने के लिए इक़दाम की हिदायत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से मुलाकात। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर समेत मुल्क की सियासी सूरत हाल और बैनुल अक़वामी उमूर पर गुफ्तगू। अमरीका ईरान कशीदगी बढ़ते ही तेल की कीमतों में एक बार फिर इजाफा। बरतानवी खाम तेल की कीमत 80.46 डॉलर फी बैरल हो गई। अमरीकी खाम तेल बढ़कर $75.99 फी बैरल हो गया। नेपरा ने मुल्क भर के लिए बिजली 34 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी। बिजली मई की माहाना एडजस्टमेंट की मद में महंगी की गई। नोटिफिकेशन जारी। फीफा वर्ल्ड कप में दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना ने मिस्र के हलफ से फतह छीन ली। 2 गोल के खसारे के बावजूद आखिरी 13 मिनट में 3 गोल दागकर कामयाबी हासिल कर ली। फीफा वर्ल्ड कप में मिस्र के खिलाफ मुतनाज़ा फैसलों पर फुटबॉल की दुनिया में हलचल मच गई। मिस्र का जीता हुआ मैच अर्जेंटीना को गिफ्ट कर दिया गया। दिफाई चैंपियन टीम ने रेफरी की मदद से 3-2 से कामयाबी समेट ली। फीफा वर्ल्ड कप के प्री क्वार्टर फाइनल में स्विट्जरलैंड ने सबको हैरान कर दिया। कोलंबिया की मजबूत टीम को पेनल्टीज पर शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। मुकर्ररा वक्त तक मुकाबला 0-0 से बराबर रहा। स्विट्जरलैंड ने 72 साल बाद फीफा वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। स्विस फैंस ने तारीखी जीत को खूब एंजॉय किया। सड़कों पर जश्न मनाते रहे।
फीफा वर्ल्ड कप की क्वार्टर फाइनल लाइनअप मुकम्मल हो गई। मोरक्को, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड ने शानदार खेल से गैर मुतवक्के तौर पर आखिरी 8 टीम से अपनी जगह बनाई है। 2 रोजा आराम के बाद इवेंट का पहला क्वार्टर फाइनल जुमे की शब खेला जाएगा, जिसमें फ्रांस का मुकाबला मोरक्को से होगा और दूसरे क्वार्टर फाइनल में स्पेन और बेल्जियम, तीसरे क्वार्टर फाइनल में इंग्लैंड और नॉर्वे और आखिरी क्वार्टर फाइनल में स्विट्जरलैंड और दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना मद्दे मुकाबले आएंगे।